Okay, so today we are going to start with death of a partner. Last time we finished retirement. So the entries are very similar to retirement. There is no change. Basically, in a way, the partner is leaving the firm. So then he may leave as a retiring partner or a dying partner. So he may die and leave, or he may voluntarily leave as a retirement. So the entries are the same. Okay. So just instead of this retirement, I can replace it with death. Entries still remain the same. So in this case, what was happening? A, B, C were old partners, 3 is to 2 is to 1. Suppose C died. So obviously he will leave the firm involuntarily. And unless anything is given, A and B will continue sharing profits in the ratio 3 is to 2. So they will just cut C's share, or they might decide to share in a different ratio. Now, same, the partner who is dead, the firm will have to give him his capital back. Obviously, not to him, to his wife or to his executor, to his legal heir, maybe. His capital in the firm, his share of capital, his share of reserves, his share of goodwill, his share of revaluation profit and loss. All this has to be given to him. Also, generally, death is unplanned. So if he, for example, dies in between the year, normally retirement when it happens at the end of the year. So whatever profits are during the year, they are already appearing in the reserves. Okay. Generally, in case of retirement, they plan the retirement. At the end of the year, I'll retire. So for the whole year, whatever profit was there, they will distribute to him. At the same time, it will be included in the reserves also, if not distributed. So it will be in the reserves as accumulated profits. Now, in case of death, what happens is that suppose during the financial year, he dies in between the year. For example, the year has started like April to March. Suppose April to March 2020-21, and he dies maybe in October, 1st October he dies. So he shall be given the share of profits for that period. But the problem is the year has not ended. He has died on 1st October. So we don't know if we are going to make profit this year or not, because the year is still to continue. The year has still 6 months left. So we don't know if during 2021 are we going to make profit or not. But he is dead, so we have to give his share of profit for this year. So in that case, what we do, we estimate the profit for this year and calculate the profit based on estimation. Generally, last year's profit or average of last 3 years profit is taken to estimate this year's profit. Then calculate 6 months profit from that for the period he was alive, and then give his share to him. So basically, if he dies in between the year, he will be given his share of profit during the year also. But if he dies at the year end or at the start of the year, then we don't need to pass this entry, because already the reserves are having the effect of that profit. So we don't have to distribute any extra amount. But if he dies in between, then we will have to pass additional entry. And that entry is, before we close, one more entry we need to pass for him. If he dies in between, is that the entry will be the profits during the year he was alive and in which he died. The entry will be P&L suspense. As we don't know this year's profit, but we are estimating it, we'll debit P&L suspense to, suppose, C. So in this case, we'll credit it to C capital. And in this case, when we close the account of C, we will transfer to his executor, or you can say to
Mrs. C's loan account. It can be called Mrs. C's loan account, or we can call it to C's executor. Anybody who's executing his will. That is his lawyer or a CA or whoever. It might be his legal hair also. So C capital will be closed. Obviously, he is dead, so we cannot transfer to C's loan. It will be either Mrs. C if his wife is there, or to his executor. That anybody who's executing his will, any lawyer generally. So basically, same entries which we passed on retirement, plus one additional entry of P&L suspense to C capital, because he was alive during the year and he died in between, because you cannot plan death, correct? So whatever profits we are estimating for that period he was alive will be given to him. His share will be given to him. That is, his share in that will be given to him. That is, in this case, it will be 1/6. So for example, suppose financial year is going on 2021, okay, and he died on 1st October during the year, 1st October 2020 he died. So we don't know the profit of this year. When do we know the profit of this year? Only when the year is complete. It might happen that first 6 months we made good profits, next 6 months we might make losses also. So we don't know till the year is ended. So what we do? So 6 months though he was alive, correct? So from 1st April, so you can say from 1st April 2020 to this period he was alive. Okay, so that comes to barely 6 months. Till 30th September we'll calculate 6 months. Okay, now, and before that 31st March 2020, till that all the profits will be distributed to them, plus it will be there in the reserves and all that. So that is not a problem. So problem is this 6 months, because he died in between. If he had died at the end of the year now, then no problem, because already the profits would have been distributed and transferred to reserves and all that, or they might have transferred to the capital, as we do. Net profit we transfer to capital, some of it we transfer to reserve. Normally what happens is that in case of a partnership firm, when they make a P&L account of the firm, whatever profit, net profit is they are getting, a portion of it they might transfer to reserve, and remaining they distribute to partners in their old ratio, whatever was the ratio. So that is already distributed. So at the end of the year, if P&L is ready, then they must have distributed. So that is not a problem. Problem is this between thing, that he has died in between. So P&L is not ready. We don't know the profit. So what we do in this case, let's estimate. So we will estimate. Suppose for 1920, let's assume 1920, just 1 year we'll assume. 1920, the profits for the year are 60,000. These are the profits. So based on that also, depending what they have given, last year ka profit assume karo, or last 3 years ka profit ka average le lo, whatever they have given. So let's assume they have given ki last year ka profit ke basis pe इस साल का भी ये करना है, ये साल का प्रॉफिट भी we have to base. So last year 60,000 था, तो ये साल भी 60,000 ही होगा, ऐसे we'll assume. Okay, तो क्या करेंगे, 60,000 पहले तो into 6/12 करो, 6 months के लिए निकालो, and then his share was 1/6. So the amount comes to 30,000 का 6, मतलब 5,000 आ रहा है. Is it 5,000? Yes. So the entry will be this 5,000. P&L suspense to C capital 5,000. So he will be given his share for those 6 months. Understood? The estimation can be anything. Estimation can be based on last 3 years profit. They will say ki last 3 years profit are these. So take an average, and that is the estimate of this year's profit. But that is for the full year. So you have to convert that into 6 months, because he was alive for 6 months. Suppose he died on 1st Jan. Then you have to calculate for 9 months and then into his share. Okay, so that is how you do it. So you can again copy this actually, because every time you copy, the better it is. So what is happening?
He will be given capital, he will be given reserve, he will be given goodwill, he will be given revaluation profits, plus he will be given profits of current year if he died in between. If he died at the end of the year or at the beginning of the year, then no need. Are you understanding? So these are the things he will be given, and this is how it will be calculated. The entry will be P&L suspense to CCAP, because still P&L account is not made, so we will just debit P&L suspense. Now this P&L suspense item will appear as a debit balance in balance sheet, and this loan account will appear as a liability in the balance sheet. Okay, please copy down. Any doubts in this? Any doubts? Has anyone any doubt or something like that? Obviously, when you do it, you will understand. Only one additional thing is there. बाकी सब same है. Only one that P&L suspense वाला thing is addition. बाकी सब same है. Yes, has everyone understood or not? And closing में it will be to C's loan, Mrs. C's loan, or to C's executor. Will transfer, close and transfer to that account. Yes, Vanita and Amit, are you there? Okay. Please start copying. Write down name of the chapter, death, and copy these entries again. And this part you can show as a separate calculation from which this entry comes. Okay, please copy down.
Okay. So basically, the entries which will pass is that the main entries will transfer the reserves to all the partners in the old ratio. Goodwill entry gaining to sacrificing. In this also we have to calculate the gain ratio. Revaluation profits or losses, assuming profits, revaluation to ABC. If he dies between the year, P&L suspense to C capital, and last में closing करके to Mrs. C's loan or to C's executor. Okay. Now let's go and see how it is applied. Illustration 1. The following was the balance sheet of Ohm and Company, in which X, Y, Z were partners, sharing profits and losses in the ratio 1:2:2 on 31st March 2016. So the balance sheet is given of X, Y, Z. The ratio was 1:2:2. Mr. Z, the third partner, died on 31st December 2016. His account has to be settled under the following terms. Now, see the problem. Balance sheet is on 31st March 2016. So the last balance sheet that was prepared, so P&L account balance sheet must have been prepared on 31st March. He died 9 months after that, on December 31st. So clearly, the P&L account is not made for the year 16-17. So 9 months profit we will have to estimate and give him his share, that is 2/5. That we will have to do because he died after the year, 9 months after the year. If he had died on 31st March or 1st Jan, oh sorry, 31st March or 1st April, then we would have no need to estimate it. Now the balance sheet is given: trade payables, bank loan, general reserve. Now general reserve will distribute to XYZ. Capital accounts are there. This will be transferred to partners capital. This will also be transferred to partners capital in 1:2:2. Goodwill will write off straight away. Straight away write off. The entry will be XYZ to goodwill on the debit side. Building, computers, inventory, trade receivable, cash, investments. So we'll see what revaluation has been told. Then this goodwill though straight away write off. Straight away write off this goodwill. They have told you goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average of the 3 years profits and losses. So these profits are given. So this is the current year, 31st March 16 ending. So profit for this year, last year before that, and an year before that is given. Because as he has died in the year 16-17, so the last years are 15-16, 14-15, and 13-14. So they are given. So they have said that goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit. So take an average of these and multiply by 2. That is how many days or how many years the average profits will sustain. That is what years of purchase means. So 2 years purchase means you take the average profit, divide by 3 karke, and multiply by 2. So that much years the average profit will sustain. That is the goodwill. Profit for the year 1st April 2016 to 31st March 2016, that is 31st December 16, that is till he died, shall be ascertained proportionately on the basis of average profits and losses of the preceding 3 years. So they have said that the profit for 9 months can be estimated from, again, average of this. So this average has two double uses actually. It can be used for goodwill also, and it can be used for that P&L suspense wala entry also for estimating the profits. But there is some adjustment to be made in these profits. They are saying that during the year ending 31st March 16, that is this year, the profit is 30,000, correct? So they have said a car costing 40,000 was purchased at the start of the year and was debited to the traveling expense account, on which depreciation is to be calculated at 20% per annum. This asset is to be brought into account at a depreciated value. Now, what is the problem? Is that, as you know, if we purchase a car, you have to capitalize that in the books. Motor car is actually capital asset. So instead of capitalizing that and claiming depreciation on that, what they did,
they debited to traveling expense. So basically they debited P&L account by 40,000. That is the cost of the car. Actually, they should have only debited depreciation instead of debiting 40,000, and at 40,000 they should have shown as an asset in the books. So what we need to do, we need to correct the wrongs that they have done. So in this 30,000, we need to add back 40,000. We will add back, so it will become 70,000. But we will have to subtract 20% as depreciation. That will be 10% is 4,000. 20% is 8,000. So we will add back 40 less 8. That will be the new profit. So it will be 62,000 something. It will come. 20,000 and loss of 10,000 is same. So as they have said that in this year the car has wrongly been shown as an expense, we have to add that back, and but depreciation we have to claim, so we can deduct that expense from the profits. So they are saying other values of the assets were agreed as follows. The revaluations are given. Inventory 16, building 140, that is the new value. So you have to see whether they have increased or decreased. Computers 50, investments at 6, and trade receivables were considered good. So there is no provision. So basically what is happening? Any provision is there? No. So nothing happening to trade receivables. Now 3 steps they have given. They have asked 3 steps. First is calculate the goodwill and Z share in the profit of the firm. That is the 9 months profit, his share. So obviously the base is the same, average profits. So we'll first correct the this year's profit for that car thing. Then we'll take average. Then we'll multiply by 2 to get the goodwill, and also calculate the retiring partners, the dying partner's share. At the same time, we'll also calculate how much profit will be estimated for this 9 months, and then his share in that. So there are 2 things we will be doing, and then remaining sum is like evaluation, partners capital, and balance sheet. Okay. Any doubt in this question before we start? Any doubts are there? Should I go to the solution? Any doubts? Okay. So basically what we'll do, so basically first of all we'll have to take the average, but before taking the average we have to correct this year's profit. Okay, so we have to correct this year's profit. So what we'll do, for the year 31st March 16, we have to first take the profit that is given, add back the cost of the car which was shown as an expense because this was debited to the P&L account. So after subtracting this, we got this net profit. Debit ka effect kya hota hai? It will reduce the profit. So it was shown as an expense. So now add back. You're not supposed to be deducted, but you can deduct depreciation 8,000 on this. So the net effect will be adding back 32,000. So the amount is 62,000. ये पार्ट समझा क्या बोलो? So once you get the correct profit of this year, now we can take average. Average देने के लिए क्या करना है? 3 साल का प्रॉफिट जो है 14 का नेगेटिव 10,000 का लॉस है, ये 20,000 है एंड 62,000, ये ऐड अप करो 72 आ जाएगा. 62 plus 20 82 minus 10 72 upon 3 for 24,000. So average profit is 24. Now calculate goodwill from that. So 24,000 into 2 is 48,000. Okay, इसमें जो C का शेयर है वो निकालना पड़ेगा, सॉरी C नहीं, Z का जो शेयर है वो निकालना पड़ेगा. उसका शेयर 2/5 है. So 48,000 का 2/5 उतना उसको देना पड़ेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में. तो उसका 2/5 भी हम लोग को निकालना पड़ेगा.
अपार्ट फ्रॉम दैट ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, बिकॉज उन्होंने बोला कि एवरेज प्रॉफिट ये साल का लास्ट ईयर के एवरेज पे, मतलब ये साल का जो प्रॉफिट है एस्टिमेटेड वो लास्ट 3 साल का एवरेज रहेगा। ओके 24,000, लेकिन ओनली 9 मंथ्स का हमने को चाहिए। सो इंटू 9/12 इंटू जेड शेयर 2/5, सो उसको देना पड़ेगा प्रॉफिट 7,200। उसका एंट्री क्या आएगा, पीएनएल सस्पेंस टू जेड। देखो ये समझाएगा, यही क्रक्स है सम, ये पूरा वर्किंग समझाया कि नहीं। देखो अगर ये समझा तो आपको सम समझ गया। You can do calculations on your calculator and see. Also goodwill 48,000 ये फर्म का गुडविल है। We will be calculating his share, Z share in that. That is 48,000 into 2/5, तो वो आएगा 19,200 आएगा उसका शेयर। तो उसका अपने को एंट्री मानना पड़ेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। उसके लिए गेन रेशियो लगेगा। Z तो सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5, we have to calculate the gain ratio. Done? समझ गया ये? Have you understood this part? Okay. अगर ये समझ गया है ना, तो इसमें से दो एंट्रीज निकलेगा। इसमें से दो एंट्रीज निकलेगा, एक तो गुडविल का एंट्री निकलेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एंड पीएनएल सस्पेंस टू जेड कैपिटल। ये दो एंट्रीज इसमें से निकलेगा। तो वो दो एंट्रीज अपने को वर्किंग में दिखाना पड़ेगा, एंड देन वी कैन पोस्ट देम इन द पार्टनर्स कैपिटल। तो व्हाट दे हैव गिवन कि ओल्ड रेशियो कितना है, 1:2:2 कुछ ऐसा है ना। ओल्ड रेशियो 1:2:2 है, एंड आफ्टर द डेथ व्हाट दे हैव डिसाइडेड, हैव दे डिसाइडेड एनीथिंग? कुछ बोला नहीं है। कुछ बोला है कि नाउ हाउ विल दे शेयर द प्रॉफिट्स? कुछ बोला नहीं है, तो यही रहेगा। सो उनका रेशियो 1:2 ही रहेगा, बिकॉज 2 को निकाल दो। ओके, सो इसमें क्या रहेगा कि उनका ओल्ड रेशियो 1/5 2/5 था, अभी इट विल बी क्या रहेगा, 1/3 2/3। तो आपको गेन निकालना पड़ेगा। सो यू हैव टू कैलकुलेट गेन, एंड देन गेन मिलने के बाद यू कैन पास द एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंड पीएनएल सस्पेंस टू, ये तो आ ही जाएगा, पीएनएल सस्पेंस टू जेड कैपिटल। ओके, सो अभी क्या करो, पहले ये पार्ट यू कैन कॉपी डाउन, पहले ये पार्ट कॉपी करो, उसके बाद गेन रेशियो निकालो। ओके, कैलकुलेट द गेन रेशियो, एंड वंस यू कैलकुलेट दैट गुडविल का एंट्री आ जाएगा फॉर जेड शेयर। उसका भी यहाँ ये जो निकाला है ना गुडविल, उसके बाद एक लाइन ऐड करो वहां पे, जेड शेयर विल बी 48,000 into 2/5, एंड देन प्रॉफिट्स का एंट्री पीएनएल सस्पेंस, वो तो आ जाएगा। ओके, तो पहले ये कॉपी कर लो, गुडविल में उसका भी शेयर निकाल के लिखो, एंड देन यू कैन पास दोस टू एंट्रीज, एंड इसके पहले गेन रेशियो निकालना पड़ेगा बिफोर यू पास द एंट्रीज।
ये तो 11th 12th में भी था ना, गुडविल एट 2 years परचेस। मैंने बोला कि दैट इज हाउ गुडविल इज कैलकुलेटेड। गुडविल वैसे ही कैलकुलेट होता है कि बेसिकली एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 years परचेस, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट 2 साल चलेगा, बिकॉज आपका इतना नाम है कि एवरेज प्रॉफिट और 2 साल चलेगा। दैट इज हाउ द गुडविल इज कैलकुलेटेड, कि आपका नाम कितना है मार्केट में, जिसके वजह से एटलीस्ट 2-3 साल आप सेम प्रॉफिट कमा पाओगे। So because of their goodwill, they can run the business for 2 more years, earning profits of 24,000। कभी कभी 3 years परचेज भी हो सकता है, यही प्रॉफिट और 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, ऐसे हो सकता है। बट दिस वाज देयर इन 12th standard as well। $72,000 कैसे आया, ऐड करके देखो ना। 62 + 20 - 10, ये 10 का लॉस है ना, 72 ही आएगा, एंड डिवाइड बाय 3 करके 24 आएगा। Once you finish copying this, let me know. Also calculate G's goodwill of this share of goodwill of Z। उसके बाद मुझे बताओ, ये कॉपी करने के बाद मुझे बताओ, होने के बाद देन मैं बोलता हूँ गेन रेशियो का बोलता हूँ।
डन, ये हो गया लिख के, दिस पार्ट इज डन. What is the goodwill share of Z? 48,000 into 2 by 5, 19,200. एंड उसका प्रॉफिट्स का शेयर कितना आएगा? 7,200. तो दोनों अमाउंट से उसको क्रेडिट आएगा. ठीक है, जल्दी जल्दी, टू मच टाइम यू टेक. ओके, सो अभी गेन रेशियो, इतने टाइम से मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि देखो ये केस में कुछ बोला नहीं है, करेक्ट, इसमें कुछ बोला नहीं है. पहला रेशियो 1:2:2 है एंड अभी Z छोड़ के जा रहा है, ये छोड़ के जा रहा है ये शेयर. तो अगर कुछ बोला नहीं है तो फिर हम लोग उसका कट कर देंगे, उसका जो 2 वाला पार्ट है वो कट कर देंगे. सो X एंड Y का नाउ शेयर विल बी 1:2. ओके, नाउ एक चीज देखो, उनका म्यूचुअल रेशियो सेम ही रह रहा है. पहले भी 1:2 था आपस में, अभी 1:2 ही है. इसका मतलब गेन भी 1:2 है. समझा? गेन निकालने की जरूरत नहीं है फिर. सो द गेन रेशियो विल बी 1:2, जैसे सैक्रिफाइस का हम लोग करते वैसे ही. अगर म्यूचुअल रेशियो सेम है तो गेन भी सेम रहेगा. तो एंट्री क्या रहेगा? XY to Z. गुडविल का एंट्री मारो, जल्दी मारो, गुडविल का एंट्री मारो. XY to Z एंट्री मतलब वर्किंग में ही मारो, फिर हम लोग वो पोस्टिंग करें कैपिटल में. एंट्री मारो XY to Z. Z के सामने लिखो 19,200 उसका गुडविल का शेयर, एंड वो XY में 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो. XY to Z, Z के सामने 19,200 गुडविल का उसका शेयर, एंड 19,200 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो X एंड Y को. गेन रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, इट इज द सेम एज द ओल्ड रेशियो, बिकॉज उनका म्यूचुअल रेशियो सेम ही है. अगर कुछ बोलते नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बोला नहीं है कि न्यू रेशियो क्या है, तो जो Z का था वो कट कर दो, ये 2 जो था उसका कट कर दो, बाकी जो बचेगा वही अपना रेशियो. अभी रिटायरमेंट में भी ऐसे ही कर देंगे. ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखो, because there are a lot of things to remember, because if you forget then सब sums अटकेंगे फिर. अगर वो हो गया है तो उसके बाद दूसरा एंट्री भी मार दो वर्किंग में. 7,200 the entry will be P&L suspense to Z cap. P&L suspense to Z capital 7,200. P&L suspense to Z capital 7,200. अभी इसके बाद नॉर्मल सम चालू हो जाता है. यू हैव टू मेक अ रीवैल्यूएशन, मेक अ पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल में पहले तो बैलेंस डाल दो, रिजर्व ट्रांसफर करो. ये जो दो एंट्रीज मैंने आपको बोली है, गुडविल एंड P&L सस्पेंस, वो पोस्टिंग कर दो. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा, वो कर दो. एंड बैलेंस शीट में गुडविल है, वो भी आपको राइट ऑफ करना है, तो वो भी कर दो. Once that is over, tell me, don't close it, मुझे बता दो. So make a revaluation and partners capital. Do the revaluation, partners capital की एंट्री जो मैंने बताए थे, रिजर्व्स का बैलेंस ट्रांसफर करो, रिजर्व्स ट्रांसफर करो, गुडविल P&L एडजस्टमेंट, एंड बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो राइट ऑफ करना. ये सब करके मुझे बताओ. Revaluation you can close, partners capital don't close. You can start, do it fast.
मेक रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर बैलेंस, रिजर्व ट्रांसफर करो कैपिटल में, ये जो दो एंट्रीज मैंने बोला वो करो, ये गुडविल जो है वो राइट ऑफ करो। अरे अमित यू आर आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस, कैसे आएगा बोलो, तुम ही बोलो, आप ही बताओ कैसे आएगा। योर क्वेश्चंस आर सर्टेन कि मतलब आपको कुछ समझा ही नहीं ऐसा लगता है। फिर गुडविल कैसे आएगा, ये गुडविल है ना 48,000, हम लोग क्या करते हैं उसका शेयर निकालते हैं ना, जेड का शेयर निकालते हैं, पूरा थोड़ी देंगे उसको गुडविल, जो पार्टनर हु इज डाइंग या रिटायरिंग उसको उसका शेयर देते हैं, तो 48,000 इंटू उसका शेयर कितना है 2/5। We are towards the end of the topic now and you are asking questions that are basic. ये तो स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं, एडमिशन से भी कर रहे हैं हम लोग गुडविल का शेयर। Now make revaluation partners capital, कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफर करो, रिजर्व ट्रांसफर करो, ये जो गुडविल दिख रहा है वो राइट ऑफ करो, एंट्री रहेगा XYZ टू गुडविल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहला था, एंड जो दो एंट्रीज हमने लिखे गुडविल की एंट्री एंड पीएनएल सस्पेंस वो पोस्ट करो, एंड नॉर्मल रिवैल्यूएशन जो भी है वो कर लो, एंड रिवैल्यूएशन क्लोज करके जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा पार्टनर्स कैपिटल में ले लो। इतना करो फिर मुझे बताओ।
पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करना है, रिजर्व्स ट्रांसफर करना है, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करना है, ये जो बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है वो राइट ऑफ करना है, वो डेबिट में आएगा ओल्ड रेशियो में। एंड देन जो दो एंट्रीज हम लोगों ने मारी है वो पोस्ट करनी है। ये सब पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लास्ट में जो रिवैल्यूएशन के चीजें दी है वो आपको करके रिवैल्यूएशन क्लोज करके वापस पार्टनर्स कैपिटल में उसका प्रॉफिट लॉस लेना है। इतना आपको करना है। डन। These are the amounts for revaluation. Inventory is reducing by 4,000. Building is increasing by 20,000. Computers are decreasing by 30,000. So inventory and computers का डेबिट आएगा रिवैल में। इन्वेस्टमेंट्स भी 4,000 से कम हो रही है, वो भी डेबिट आएगा। बिल्डिंग का क्रेडिट आएगा। उतना ही है। Just close it and take the profit and loss to profit loss जो भी है, take it to partners capital. We are towards the end of the topic now. Everyone should be expert in the topic now, because we have been doing the same entries again and again. At the same time, we have finished company accounts, partnership. We are towards the end. We have finished all the important topics. After this, only one important topic is left, is NPO. Rest all the topics are very small, like journal, ledger, and all those basic topics are left. So we have almost finished the main part of accounts. So if you revise regularly, you will be able to score good marks in accounts, because your attempt is in May, correct? And today it is November. And in November only, we have achieved a very good position in accounts. So make the most of it. Start revising so you can score literally 100 marks in accounts in the exam. Because if you don't study now and then open the books in maybe March, April, then it won't help you. Because आधा टाइम तो समझने में ही जाएगा कि ये सम कैसे किया। अभी कैसे आपको याद तो आएगा कैसे किया था, तभी तो कुछ याद नहीं आएगा। सो अभी से ही स्टार्ट करो, बिकॉज अभी आ रहा है ऐसा लगता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं आएगा इफ यू डोंट स्टे इन टच विथ एनी टॉपिक। अभी आप कंसाइनमेंट खोलोगे तो आपको कंसाइनमेंट का कुछ नहीं आएगा, बिकॉज अगर आपने टच में नहीं हो तो कंसाइनमेंट याद ही नहीं आएगा, कैसे किया था, एंट्री कैसे घुमा, वही नहीं समझेगा। So please be in touch. Same for inventory, ये अपना consignment, bills of exchange. You have to be in touch. नहीं तो you're gone. CA में वही है, CA प्रोफेशनलिज्म में वही है कि क्लास में सब लोग को आता है, अच्छे से आता है, लेकिन बाद में पढ़ाई नहीं करते, and then that's why they don't get marks.
एंड बीकॉम का लेवल का जो पढ़ाई है, जैसे 12th तक हम लोग करते हैं कि लास्ट में कर लिया, पैसा नहीं चलता यहाँ पे. ओके, सो दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक बेसिकली. सो प्लीज स्टार्ट स्टडी, स्पेशली जो भी सब्जेक्ट चालू है, बिकॉज अगर आपका प्लान रहेगा बाद में करूंगा, बाद में करूंगी, तो यू गॉन, वो बाद में कभी आएगा नहीं. एंड बाद में अगर खोलोगे बुक तो कुछ नहीं समझेगा, बिकॉज इट इज लाइक वो लिंक ही नहीं लगेगा. एंड एक एक सम करने के लिए एक एक घंटा जाएगा, फिर मतलब समझने के लिए भी, इवन इफ रीडिंग, तो फिर वो इंटरेस्ट चला जाता है, फिर वो इट लुक्स डिफिकल्ट. सो प्लीज रिवाइज रेगुलरली, नहीं तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम. सो रिवैल्यूएशन में इन्वेंट्री का डेबिट आएगा, कंप्यूटर्स का डेबिट, इन्वेस्टमेंट का डेबिट, बिल्डिंग का क्रेडिट. सो ओवरऑल इट्स अ लॉस ऑफ 18,000. सो डिस्ट्रीब्यूट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में. सो पार्टनर्स कैपिटल पहले तो रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा, देन वी हैव ट्रांसफर्ड द कैपिटल बैलेंसेस, जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया, गुडविल जो बुक्स में था वो राइट ऑफ किया पहले तो, फिर आपका जो 19,200 गुडविल का एंट्री है वो मारा, गिविंग द जेड हिज शेयर, तो बाय एक्स वाई आएगा, एंड एक्स वाई में डेबिट आएगा रिस्पेक्टिवली, एंड पीएनएल सस्पेंस का आपने एंट्री मार देगा. करेक्ट, बराबर. अभी और एक चीज करनी है. वो जो 32,000 था, याद है, कार का, हम लोग ने एक प्रॉफिट्स में ऐड किया था, ऐड बैक किया था. तो हम लोग ने वो गुडविल एंड इसके लिए तो करेक्ट कर लिया, लेकिन इसका मतलब क्या था कि वो साल का जो प्रॉफिट था, मतलब लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था, वो 32,000 से हम लोग ने कम दिखाया था. दैट इज व्हाई वी एडेड बैक टू कैलकुलेट द पीएनएल सस्पेंस. तो वो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो. सो 32,000 का जो प्रॉफिट्स वी हैड नॉट एडेड बैक, वो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, ऑटोमेटिक वो इसका एडिंग का इफेक्ट आ जाएगा. तभी हम लोग ने सिर्फ पीएनएल सस्पेंस के लिए वो ऐड किया, गुडविल निकालने के लिए ऐड किया, लेकिन उसका इफेक्ट भी देना पड़ेगा ना, कि एडबैक का इफेक्ट देना पड़ेगा. तो एडबैक का इफेक्ट कैसा आएगा, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दो. सो इट इज लाइक द 32,000 which we had not added back to the profits, right, to the partners in their old ratio. So यहाँ पे आएगा बाय मोटर कार, एट द सेम टाइम मोटर कार में भी डेबिट जाएगा. सो बैलेंस शीट में कार भी दिखेगा 32,000 का. देखो नीचे, देखो बैलेंस शीट, देखो कार भी दिखना चाहिए ना बैलेंस शीट में. तो एंट्री क्या आएगा, डायरेक्ट पार्टनर्स थ्रू मार दो, कार टू एक्स वाई जेड. सो कार का 32,000 आएगा टू एक्स वाई जेड, 1:2:2 में. सो 32,000 in the ratio 1:2:2 will be 6,400, 12,800, 12,800. तो ये एंट्री मार दो बाय कार. ऑटोमेटिक आपका एंट्री क्या है, कार टू एक्स वाई जेड. तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग बैक दैट 32,000 जो नहीं हुआ था. एट द सेम टाइम कार को भी डेबिट जाएगा बैलेंस शीट में, मतलब कार अकाउंट को भी डेबिट जाएगा. सो बैलेंस शीट में कार विल अपीयर, नहीं तो कार आएगा ही नहीं. तो ये एक एंट्री मारना बाकी है. वंस यू डू दैट, फिर जेड का क्लोज कर दो, जेड का क्लोज कर दो. एंड कुछ बोला नहीं है किसको ट्रांसफर करना है, कुछ बोला है क्या, टू whom we have to transfer that, nothing is given. तो टू जेड एग्जीक्यूटर कर देना. तो जेड का पहले क्लोज कर दो, एंड देन राइट टू जेड एग्जीक्यूटर, एंड एक्स वाई का नॉर्मल क्लोज करके टू बैलेंस कॉल डाउन कर देना. देन वी विल मेक बैलेंस शीट.
डन आ रहा है? ये कार का एक एंट्री नया है. ओके, सो दैट हैज द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग द प्रॉफिट आल्सो, बिकॉज अभी तक तो सिर्फ हम लोगों ने गुडविल एंड इसके इसमें लिया था, एक्चुअल एड बैक तो नहीं किया था. फ्रॉम दैट नाउ वी कैन मेक द बैलेंस शीट इजीली. बैलेंस शीट में क्या आएगा? कैपिटल्स ये दोनों आएगा, एक्स वाई का. जेड एग्जीक्यूटर का लोन दिखेगा, यहाँ पे लोन दिखेगा. ट्रेड पेएबल बैंक लोन सेम ही रहेगा. बिल्डिंग रीवैल्यूड फिगर में आएगा 1,40,000. कार 32,000 में अपियर होगा नेट ऑफ डेप्रिसिएशन. इन्वेंट्री भी नया फिगर पे आएगा, कंप्यूटर्स भी नए फिगर पे, इन्वेस्टमेंट्स भी नए फिगर पे. ट्रेड रिसीवेबल इज नॉट चेंजिंग, कैश इज नॉट चेंजिंग, and P&L suspense will appear as a debit balance. So this is the balance sheet that will appear. You can copy the balance sheet. Okay. Any doubts in this? Any doubts in this sum? So basically ये sum जो है, this can be done in two parts. इसमें two parts है. First part is the working, जिसमें हम लोग गुडविल का एंट्री निकालते हैं एंड P&L सस्पेंस टू जेड कैपिटल का एंट्री निकालते हैं, एंड देन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट. उसमें एक एडिशनल एंट्री हम लोग ने मारा कार का, जो हम लोग दिखा रहे कि 32,000 जो एक्सपेंस किया था, that has to be capitalized. The entry will be car to XYZ. So automatic जो प्रॉफिट लास्ट टाइम डेबिट किया था 32,000 का, जो एक्सपेंस करके दिखाया था, वो हम लोग एड बैक कर रहे हैं. तो इट विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो एज इफ कि उनको वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड कार विल बी डेबिटेड विद द सेम अमाउंट.
सो बैलेंस शीट में कार भी दिखेगा। ये इसकी जरूरत ही नहीं है। एंड बाय द वे ये इन्होंने गलत किया है यहाँ पे, द रेशियो इज रॉन्ग, इट शुड बी 2/15 बराबर है, लेकिन ये 4/15 आना चाहिए था, इट शुड बी 4/15। यू कैन सी हियर, एक्चुअली निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एंट्री देखो, एंड ऑफ द एंट्री आपका उनका सेम ही है, तो ये 1:2 में यहाँ पे लिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2:2 कर दिया, तो इट शुड हैव बीन 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। निकालने की जरूरत नहीं है ये ऐसे करके, बिकॉज डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, बट फिर भी यहाँ का गलत है। तो इफ यू आर रिवाइजिंग तो आप देखोगे यार यहाँ पे अलग है, तो ऐसा होने चाहिए, गलत किया है, इट शुड बी 4। तो इफ यू हैव टेक्स्ट बुक, तो यू करेक्ट दैट इन दैट। बट ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्किंग की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, हम लोग शॉर्टकट मारते हैं पूरा। नाउ थर्ड सम, दिस इज अ स्मॉल सम, फटाफट कर लेंगे। Following is the balance sheet of Messrs. ABC Brothers as at December 31st, December 2015. बैलेंस शीट दिया है 31 दिसंबर का, एबीसी जनरल रिजर्व ट्रेड पेबल्स। सो कैपिटल तो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व भी हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ट्रेड पेबल का क्या बोला है पता नहीं, रिवेल में शायद जा सकता है। मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड ऑल इज देयर। ओके, सी डाइड ऑन 3rd Jan. Now see, balance sheet is closed on 3rd December and he just died after 3 days. तो इसमें वो P&L सस्पेंस का एंट्री आएगा ही नहीं, बिकॉज 3 दिन के बाद तो he died. So ऐसा कुछ प्रॉफिट भी फिट ग्रेड ऐसा 3 दिन का कुछ देने का ऐसा कुछ नहीं रहता. So he just died immediately. So as if he died next day. So वो P&L सस्पेंस का एंट्री की जरूरत ही नहीं. So you don't have to estimate the profit and all that. हाँ, लेकिन उसको नॉर्मल बाकी सब देना पड़ेगा, जैसे कि रिजर्व्स का शेयर, कैपिटल उसका, देन गुडविल एंड रिवेल का प्रॉफिट्स, जैसे रिटायरमेंट में देते, तो ऑटोमेटिक रिटायरमेंट का ही सम हो गया, बिकॉज वो पीएनएल सस्पेंस का तो करना नहीं है, बिकॉज ही डाइड इमीडिएटली। सो वॉट एवर प्रॉफिट्स ऑफ दिस ईयर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिम, तो उसके कैपिटल में आ गया रहेगा या रिजर्व में आ गया रहेगा, सो उसका कुछ टेंशन नहीं है। एसेट्स का रिवैल्यूएशन दिया है, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम गुडविल उन्होंने बोला है, फर्म का गुडविल 3000 दिया है, तो सी का शेयर, सी ही गया ना, सी का शेयर निकालना पड़ेगा, was to be credited to with his share without using goodwill. Anyways हम लोग goodwill account यूज नहीं करते, तो हम लोग gaining to sacrificing करेंगे। 1000 was paid away to the executors of the dead partner on 5th Jan. Basically उसका जो सी कैपिटल हम लोग क्लोज करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, टू एग्जीक्यूटर। तो यहाँ पे बोला है जो भी बैलेंस आएगा ना, उसमें से 1000 टू बैंक करना है एंड बाकी का टू एग्जीक्यूटर करना है, मतलब 1000 इमीडिएटली पे करना है, बाकी का टू एग्जीक्यूटर। सो सी कैपिटल टू बैंक आएगा एंड बाकी का जो भी रहेगा बैलेंस टू एग्जीक्यूटर। तो उतना ही है, इसमें क्या करना है आपको, पहले तो गुडविल का एंट्री देखो क्या है। नाउ दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग, हैव दे गिवन एनीथिंग? सो लेट्स अज्यूम देयर शेयर्स आर इक्वल, ओके, 1:1:1, एंड सी जाने के बाद भी उनका 1:1 ही रहेगा, बिकॉज सी चला गया एंड नथिंग इज सेड, तो उनका कोई 1:1 कंटिन्यू होगा। तो ऐसे केस में उनका गेन भी 1:1 ही रहेगा। तो क्या करो, इसमें सी का शेयर कितना है, 1/3, मतलब 1000। तो ए बी टू सी ये एंट्री है गुडविल का, सी के सामने 1000 लिख दो एंड ए एंड बी विल शेयर इट इक्वली, मतलब गेन उनका इक्वल है, तो फिर 500, तो एंट्री विल बी ए बी टू सी 500, 1000। ये आ गया गुडविल का एंट्री। बाकी तो आपको रिवैल्यूएशन का जो भी करना है कर लो, फिनिश इट, कुछ नहीं बचा इसमें, कुछ नहीं है सब में। ओके, सो जस्ट मेक, पहले गुडविल का एंट्री लिख लो बाजू में, वो ही एक इंपॉर्टेंट है, जस्ट गुडविल का एंट्री लिख लो कि सी का शेयर 1000 है, कुछ बोला नहीं तो इक्वल, एंड पहले 1:1:1 है, तो अभी सी का निकाल दो, बिकॉज कुछ सी जाएगा, तो कुछ बोला नहीं कि न्यू शेयर क्या रहेगा, तो ए बी का 1:1 ही रहेगा, तो सी का कट कर दो, 1:1 उनका रहेगा, तो म्यूचुअल रेशियो सेम ही है, मतलब गेन भी वही है, ओके, इक्वल 1:1। तो सी को अगर 1000 दे रहे तो ए बी टू सी एंट्री आएगा, तो 1000 विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ए एंड बी, सो 500, 1000। ये गुडविल का एंट्री लिख लो एंड देन मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उतना ही करना है। बैलेंस शीट पूछा है, बैलेंस शीट नहीं पूछा नहीं है, वो अलग क्वेश्चन है। सिर्फ गुडविल का एंट्री पूछा है उन्होंने, जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, तो वो एंट्री मार दो एंड देन रिवैल एंड पार्टनर्स कैपिटल कर दो। पार्टनर्स कैपिटल में क्या करोगे, कैपिटल लोगे, जनरल रिजर्व ट्रांसफर करोगे, देन डू द रिवैल,
हाँ, उसके पहले गुडविल का एंट्री भी पोस्ट करोगे कैपिटल में, रिवेल का सब कर लो, रिवेल क्लोज करके पार्टनर्स कैपिटल में ले लो। ये होने का बताओ मुझे, फिर क्लोजिंग का बताता हूँ कैसे करना। डू इट फास्ट।
किधर तक हो गया? Till what point have you come? What is the revaluation loss or profit? कितना? 150. करेक्ट. तो वो हो जाएगा इक्वल रेशियो में, क्रेडिट हो जाएगा. एंड बाकी सब हो गया गुडविल का वगैरह. Distribute the profit to all the partners in equal ratio. Okay. Yes, others? Done. पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल ट्रांसफर किया, रिजर्व ट्रांसफर किया, गुडविल का एंट्री मारा. ये तीन चीजें करनी है. एंड देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेना है. ओके. अभी क्या करना है? खत्म हो गया सम. अभी क्या करना है? कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है. सॉरी, सी इज डाइंग. तो सी का क्लोज करना है. ओके. एंड जो भी बैलेंस आएगा, यहाँ पे कुछ 6050 बैलेंस आएगा, उसमें से दे हैव सेड कि 1000 इज टू बी पेड इमीडिएटली. तो टू कैश या बैंक आएगा. बैलेंस शीट में क्या है? कैश है. क्या कैश है? तो टू कैश आएगा. एंड बाकी का टू एग्जीक्यूटर, बिकॉज दे आर इमीडिएटली पेइंग. बाकी का एग्जीक्यूटर मतलब टू लोन, एग्जीक्यूटर्स लोन टाइप्स. सो दैट इज द एज अ लायबिलिटी. एंड देन बाकी पार्टनर्स का क्लोज करके टू बैलेंस कॉल डाउन. उतना ही करना है. इनफैक्ट और एक चीज देखो, यहाँ पे हर बार हर सम में ना दे हैव कैलकुलेटेड गेन रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बोला है. वो शॉर्टकट याद रखो. बिकॉज मैंने क्या बोला है आपको, अगर म्यूचुअल रेशियो दोनों का सेम है तो गेन भी सेम रहेगा. सेम फॉर एडमिशन. एडमिशन में बोला था कि अगर जो पुराने पार्टनर्स है उनका म्यूचुअल रेशियो सेम है तो सैक्रिफाइस भी सेम ही है, ओल्ड रेशियो में ही है. तो ये सब याद रखो. सो यहाँ पे उन्होंने हर सम में दे हैव कैलकुलेटेड द गेन सैक्रिफाइस. जरूरत नहीं है. सो द कंपेटिटर्स, योर कंपेटिटर्स इन द एग्जाम विल बी कैलकुलेटिंग दैट. आपको मेंटली आ गया रहेगा आंसर. समझा? तो ये सब छोटी छोटी बातें है ना, याद रखो. दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. ओके. ये हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. ये देखो बैलेंस शीट में, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें. यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में प्रोविजन दिख रहा है. ठीक है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 300. तो दे हैव आस्क्ड कि which account would be debited and which account credited if the provision for doubtful debts in the balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the death of C. बेसिकली प्रोविजन रिवर्स करना है. जब प्रोविजन रिवर्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं?
विद क्रेडिट रिवैल्यूएशन, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे बाय प्रोविजन रिवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा 300 का, बिकॉज जब प्रोविजन हम लोग क्रिएट करते हैं वी डेबिट रिवैल्यूएशन, व्हेन वी रिवर्स इट वी क्रेडिट, फायदा हुआ ना, प्रोविजन की जरूरत नहीं मतलब फायदा हुआ, वी क्रेडिट रिवैल्यूएशन, उतना ही है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे provision for doubtful debt is a credit balance, to close it is debited, so the entry will be provision to revaluation, it becomes a gain for the partners, वो gain का type है, so we have to credit revaluation, therefore either partners capital account including C direct partners capital में कर दो या revaluation में credit कर दो, तो normally हम लोग reval में करते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको ये लिख दो, ये बुक में लिख दो। so basically what you do, एक entry ही मार दो डायरेक्टली कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन 300। ये थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर डायरेक्ट एंट्री में ही लिख लो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन 300। ओके ओके हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन। अभी ये चैप्टर में एक फोर्थ सम है एंड सेकंड सम बचा है, सिर्फ 4 सम्स है। सो ऑन फ्राइडे विल बी फिनिशिंग दिस टॉपिक, फ्राइडे को ये खत्म हो जाएगा। सो वी हैव फिनिश्ड पार्टनरशिप के तीनों चैप्टर्स, एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ, विच इज अ मेजर चैप्टर। कंपनी अकाउंट भी हो गया। सो इफ यू सी मॉड्यूल 2 अगर देखा सी फाउंडेशन का, तो उसमें मेजर कंपनी अकाउंट्स है एंड पार्टनरशिप है, ये दोनों मेजर हो गए। अभी इसमें मॉड्यूल 2 में सिर्फ बचता है एनपीओ, तो वो एक करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल 1 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि इन्वेंट्री, देन कंसाइनमेंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट इज, देन सेल ऑन अप्रूवल, ये सब भी अपने हो चुके हैं। ओके, सो नाउ एक एनपीओ छोड़ा, एनपीओ का टॉपिक छोड़ा, तो आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद एनपीओ आफ्टर पार्टनरशिप। तो इफ वी लीव दैट, बाकी सब टॉपिक्स अभी इजी है। सो अभी तक जितना हुआ है अच्छे से रिवाइज करो एंड ऐसा मत सोचो कि टाइम है, बहुत टाइम है। सीए एग्जाम में कभी टाइम पूरा नहीं पड़ता, एग्जाम में छोड़ो, एग्जाम के पहले भी नहीं पूरा। ऐसा अगर लगा आपको कि एग्जाम मेरा पढ़ाई हो गया है, मुझे सब आता है, देन यू आर इन अ बबल। बहुत पढ़ाई करना है एंड आपका पोजीशन बहुत अच्छा है। अभी नवंबर जस्ट चालू हो रहा है एंड आपका अकाउंट्स का ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन खत्म होने को आया है। वॉट एवर इज लेफ्ट इज द इजी पार्ट। मॉड्यूल 1 में जर्नल, लेजर, कैश बुक, ऐसे सब बेसिक 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स जो है वो बचे हैं। सो ऑलरेडी मेजर पार्ट इज ओवर, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द मोस्ट ऑफ योर पोजीशन, बिकॉज ये पोजीशन खराब होने को टाइम नहीं लगता एंड एक बार खराब हो गया तो फिर वो रिकवर नहीं होता। दैट इज वाई स्टूडेंट्स डोंट क्लियर इन सीए एग्जाम्स, बिकॉज बाद में करेंगे करके छोड़ देते हैं एंड बाद में वो रिकवर नहीं हो पाता। अभी जो हम लोग ने किया है, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, जो भी टॉपिक्स किया है, कितना भी बोलो अभी भी आपके माइंड में थोड़ा तो फ्रेश रहेगा, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट फास्ट। तो रिवाइज जब करोगे तो आपको फटाफट आ जाएगा, नहीं तो अगर आप अभी रिवाइज नहीं करोगे, बाद में करूंगा, तो फिर करूंगी, बाद में करूंगा, ऐसा करोगे तो खत्म। फिर जब भी खोलोगे, जब भी बुक खोलोगे तभी कुछ नहीं याद आएगा। इट विल बी जस्ट लाइक हाँ ये ऐसे सम्स है, बस कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से एंड करूं, वो कुछ नहीं याद आएगा। तो प्लीज बी इन टच, हैव अ हैबिट कि एवरी डे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 10 घंटा पढ़ाई करो, हैव अ हैबिट कि एवरी डे यू आर स्टडिंग एटलीस्ट 1 hour ऑफ अकाउंट्स। रोज 1 घंटा करो। आज नवंबर है,
यही डिसिप्लिन आप एग्जाम तक रखो, रोज 1 घंटा अकाउंट्स के लिए दो, 1 से 1.5 घंटा, अगर आप दे पाओ तो 1.5 घंटा दो, दैट इज बेटर। तो 1.5 घंटा रोज अभी से डिसिप्लिन रखो, रोज मैं अकाउंट्स करूंगा, एग्जाम तक ऐसे ही कंटिन्यू करो, आपको एग्जाम का कुछ लोड नहीं आएगा। एग्जाम के एक दिन पहले भी यू विल बी लाइक रिलैक्स, जो इतनी बार प्रैक्टिस किया है। सोचो रोज 1.5 घंटा टिल एग्जाम, नवंबर से लेके टिल अप्रैल अगर आप करोगे तो कितना आपका रिवीजन होगा, कितना प्रैक्टिस होगा। तो ऐसे ही करना है, दैट इज हाउ यू शुड प्लान। सो अकाउंट्स का रोज 1.5 घंटा या 1 घंटा, स्टार्ट विद 1 आवर, रोज 1 घंटा दो। चाहे तो सैटरडे संडे मत करो, मंडे टू फ्राइडे करो, या मंडे टू सैटरडे करो, संडे को मत करो, ऐसा कुछ करो, बट एवरी डे डू इट, स्टे इन टच विद द सब्जेक्ट, बिकॉज सीए का कैसा है ना कि यू हैव टू स्टे विद इन टच विद द सब्जेक्ट्स, इफ टच इज गॉन यू आर गॉन। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, टच गया गॉन। सो प्रोफेशनल एग्जाम्स में वैसे ही होता है कि क्लास में सब आता है, समझता भी है, बट बाद में जब सेल्फ स्टडी की बारी आती है तब स्टूडेंट्स नहीं करते, एंड देन दैट इज द रीजन ऑफ देयर फेलियर। तो मैं आपको पहले अलर्ट कर रहा हूँ कि दिस इज द रीजन, बाकी कुछ रीजन नहीं है। बाकी अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया आपको सब आ रहा है, ओके, सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ रिवीजन नाउ। सो रोज एक प्लानिंग करो, जस्ट डोंट स्टार्ट स्टडिंग, कुछ प्लानिंग करो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी, मे बी नेक्स्ट वीक से करो, लेकिन करो। एक प्लानिंग करो कि रोज मैं 1 घंटा अकाउंट्स के लिए दूंगा, 1 घंटा मैं अकाउंट्स के लिए दूंगी, एंड बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट में भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे कि मैथ्स है, 1 घंटा दो, रोज रोज 1-1 घंटा तो दे सकते हो ना, तो दिन का 2 घंटा तो आप बाजू में निकाल ही सकते हो। स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपको करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स वगैरह आप बाद में कर भी सकते हो, इकोनॉमिक्स से आप यू कैन रिकवर, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मैथ्स एंड अकाउंट्स के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। सो ऐसे ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना, यू हैव टू बी इन टच। तो 1-1 घंटा तो निकाल ही सकते हो, अभी से निकालोगे तो इट विल एड अप टू लॉट। तो कुछ प्लानिंग करो, डू सम प्लानिंग, जस्ट डोंट लाइक करना है कर बाद में करेंगे, कर रहा हूं, ऐसा सब मत करो। हैव अ प्लान इन हैंड, फिर लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट करो। मतलब 2 घंटा अगर डिसाइड किया कि 1 घंटा अकाउंट्स करूंगा, 1 घंटा मैथ्स करूंगा, तो सोने से पहले 1 घंटा यू कैन डू अकाउंट्स, सुबह उठने के बाद या व्हाटएवर, बीच में दोपहर को कभी बोर हो गया रहेगा तो यू कैन डू मैथ्स, ऐसा तो कुछ कर ही सकते हो। एनीवेज हम लोग मोबाइल पे, ऐसा एक बार मोबाइल हाथ में पकड़ लिया तो 1 घंटा ऐसे निकल जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट सॉल्व अकाउंट्स, म्यूजिक सुनते सुनते करो या मैथ्स। सो रोज 1-1 घंटा करो मैथ्स एंड अकाउंट्स, तो इससे क्या होगा, इट विल एड अप टू अ लॉट, एंड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर कभी मैथ्स एंड अकाउंट्स का। एंड एनीवेज दे आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, सो एनीवेज व्हेन सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट यू हैव टू डू इट रेगुलरली, तो ही आप मास्टर बनते हो। ये जो लोग स्कोर करते हैं अकाउंट्स मैथ्स में, दे डू इट बिकॉज दे डू इट रेगुलरली। कोई भी चीज अगर आप रेगुलरली करोगे, रोज करोगे, तो यू बिकम मास्टर ऑफ इट, वही करना है। इकोनॉमिक्स आप बाद में भी रिकवर कर सकते हो, कभी बोर हो गया तो यू कैन ऑलवेज रीड इकोनॉमिक्स, चल आज बोर हो गया इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ऐसा मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट 1 आवर, संडे विंडे को, सैटरडे को कभी कभी ऐसा ही कुछ पढ़ना का मूड हो गया तो यू कैन रीड इकोनॉमिक्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये 2 सब्जेक्ट्स में आएगा। सो मेक अ प्लान एंड स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज एक बार टाइम निकल जाएगा ना फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अभी टाइम है आपके पास, यू आर एट एडवांटेजियस पोजीशन, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो मई में क्लियर हो जाओ, देन स्टार्ट स्टडिंग फॉर इंटर, सो आपका लाइफ नया लेवल पे चला जाएगा, नहीं तो क्या उधर ही। ओके, सो इफ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, स्टार्ट स्टडिंग। Okay, so see you on Friday, we'll finish this chapter and then after that next we'll start with NPO. Okay, chalo, take care, bye bye.